جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بیٹا ہمارا ٹاپک ہے انٹروگیٹو سینٹینسز. وہی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایزرٹیو سینٹینسز کے بارے میں پڑھا تھا, خبریہ جملوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج جو ہے انٹروگیٹو سینٹینسز, سوالیہ فقرے, جسے آپ استفہامیہ جملے بھی بولتے ہیں. اچھا, سوالیہ فقرے دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک ایسے فقرے ہوتے ہیں جو وچ, وٹ, ویئر, وائی, ہاؤ وغیرہ سے شروع ہوں اور جن کے جواب کے لیے پورا فقرہ درکار ہو. میں اگر کہتا ہوں کہ وہ سکول کیوں جا رہا ہے, اس کے لیے مجھے ایک پوری اسٹیٹمنٹ بیان کرنی پڑے گی اس کو کہ جو ہے نا وہ اس لیے سکول نہیں جا رہا, اس لیے سکول نہیں جا رہا. مطلب پورا اس کو ایک سینٹینس چاہیے اس جو ڈیٹیل کے لیے, اس کو جو ہے نا یہ پروف کرنے کے لیے وہ سکول کیوں نہیں گیا. اور دوسری ٹائپ کے ایسے فقرے ہوتے ہیں بیٹا جو صرف اور صرف ہیلپنگ ورب سے شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ڈز ہی گو ٹو اسکول, کیا وہ سکول گیا. اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں یا نہیں, یس اور نو میں جواب ہوگا. تو وہ ایک کافی جواب ہوگا میرے لیے, کیونکہ میں نے کویسچن ہی کچھ اس ٹائپ کا کیا ہے کہ میں اس سے صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سکول گیا بھی ہے یا کہ نہیں گیا. بس اگر وہ کہتے ہاں یا نہ تو اس کا مطلب یہ ہے. تو بیٹا یہ دیکھیں دو ٹائپس کے فقرے ہیں. ایک ایسے فقرے ہوتے ہیں جو وچ, ویئر, جنہیں آپ ڈبل سوالیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں. وچ, وٹ, ویئر, وائی, ہاؤ, اس چیز سے جو ہے نا الفاظ سے جو فقرے شروع ہوتے ہیں, سوالیہ جو فقرے ہوتے ہیں, ان کو ہم ڈبل سوالیہ بھی کہتے ہیں. اور دوسرے جو ایسے فقرے ہیں یہ یس اور نو, جن کے ہیلپنگ ورب سے جو شروع ہوتے ہیں, انہیں بیٹا یہ دوسری ٹائپس کے فقرے ہیں. اچھا, کچھ جو تبدیلیاں لائی جاتی ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز میں, وہ کچھ درج ذیل ہیں بیٹا. وہ کہتا ہے سیڈ ٹو کو آسکڈ میں تبدیل کریں گے. وہاں پہ ہم ایزرٹیو سینٹینسز میں ہم نے کس میں کنورٹ کیا تھا, سیڈ ٹو کو ٹولڈ میں کنورٹ کیا تھا. یہاں پہ سیڈ ٹو کو وہ کہتا ہے آسکڈ میں تبدیل کریں. آسکڈ کا مطلب ہے پوچھنا بیٹا. انٹروگیٹو سینٹینسز ہے, کسی سے ہم پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے کیا ہم سیڈ ٹو کو آسکڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا, دوسری جو اس کی تبدیلی ہے بیٹا وہ کہتا ہے سوالیہ فقرے کی انڈائریکٹ میں دیٹ نہیں لگتا. وہاں پہ دیٹ لگتا تھا جب بھی ہم جو انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے تھے, جب کاماز ہٹاتے تھے تو وہاں پہ ہم دیٹ استعمال کرتے تھے. یہاں پہ بیٹا دیٹ نہیں لگتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو خیال رکھیے گا. اچھا جی, تھرڈ وہ تبدیلی ہے دوسری قسم کے سوالیہ فقروں میں ایف یا ویدر کا اضافہ کرتے ہیں. یہ جو دوسری قسم کے فقرے ہیں بیٹا جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتے ہیں, ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ایف یا ویدر کا اضافہ کرتے ہیں. آپ ایگزامپل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف یا آئے گا یا ویدر آئے گا, کسی بھی ایک چیز کا ہم اضافہ کرتے ہیں. اچھا, انڈائریکٹ بنانے سے پہلے فقرے کو سادہ جملے میں تبدیل کر لیا جاتا ہے. بیٹا انڈائریکٹ بنانے سے پہلے کوئی بھی فقرہ ہو, جب اگر وہ فقرہ انٹروگیٹو سینٹینسز سے تعلق رکھتا ہے تو اسے ہم انڈائریکٹ بناتے وقت بیٹا ہم کیا کرتے ہیں, پہلے جملے کو سادہ جملے میں تبدیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے وائی ڈو یو ویپ, آپ کیوں روتے ہیں. اس کا جو بیٹا یہ اب سادہ فقرہ یہ ہے وائی یو ویپ. اب ڈو کو میں نے ختم کر دیا, وائی یو ویپ, آپ کیوں روتے ہیں. اچھا جی, آر یو ایل, یو آر ایل. اب یہ دیکھیں, اب یہ فقرہ سادہ ہو گیا. آر یو ایل, کیا وہ بیمار ہے, بیمار ہیں, تو یو آر ایل, آپ بیمار ہیں. یہ فقرہ سادہ ہو گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, باقی تبدیلیاں وہ کہتا ہے حسب معمول ہوں گی. باقی تمام کی تمام تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں بیٹا, جیسے ویسے ہوتی ہیں. ٹینس میں تبدیلی ہو گئی, یا اسی طرح جو پروناؤن تھی اس کے اندر تبدیلی تھی, یا مختلف جو ورڈز استعمال ہو رہے تھے, ہم نے مخصوص کچھ الفاظ تھے ہیئر, دیئر میں, دیٹ, دوز میں, دیز میں, دوز میں, جی بالکل, دس, دیٹ میں, دیز, دوز میں, اسی طرح جو ہے نا جو مختلف تبدیلیاں تھیں, تو وہ ساری کی ساری تبدیلیاں سیم ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے. اچھا, کچھ مثالیں ایگزامپلز ہیں بیٹا. وہ کہتا ہے سجاد سیڈ ٹو ہز فادر ویئر آر یو گوئنگ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ انٹروگیٹو سینٹینسز سے تعلق رکھتا ہے, تو یس. تو اب دیکھیں یہاں پہ ویئر آ رہا ہے, یہ پہلی قسم کا جو ہم نے سوالیہ فقرہ لکھا ہے جسے ہم ڈبل سوالیہ کہتے ہیں, اسی ٹائپ کا فقرہ ہے. اچھا, اس کے اندر آپ دیکھیں اس کو ویئر آر یو گوئنگ. اچھا, سب سے پہلے آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے کیا اس کا ٹینس تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا. باہر والا فقرہ جب بھی ماضی کا تعلق رکھتا ہو بیٹا, اندر والے فقرے کا ہو بہت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا, انلیس کے جو ہے نا اگر اندر والے فقرے کے اندر اگر کویسچن جو کاماز ہیں اگر ان کے اندر یونیورسل ٹروتھ بیان نہیں کی گئی تو پھر جو ہے نا بازی کا اگر باہر فقرہ ہے تو تبدیل ہوگا. اگر یونیورسل ٹروتھ ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو لیکچر میں جو لاسٹ لیکچر ہوا اس کے اندر بتایا, اگر یونیورسل ٹروتھ ہے کامے کے اندر تو اندر والے فقرے کا جو ہے نا زمانہ تبدیل نہیں ہوگا, اس کا ٹینس تبدیل نہیں ہوگا, خواہ باہر والا فقرہ ماضی سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو. اب ویئر آر یو گوئنگ, یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے تو اندر والا تبدیل ہوگا. اچھا, سیڈ ٹو کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں اگر فقرہ سوالیہ ہو. میں نے یہاں پہ لکھا ہے سیڈ ٹو کو آسکڈ میں تو کنورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی تبدیلی یہی کرنی ہے آپ نے. سیڈ ٹو کس میں کنورٹ ہو گیا جی, آسکڈ میں کنورٹ ہو گیا.
ही सज्जाद सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, सज्जाद आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया। हिज फादर अपने बाप को कहा वेयर ही वाज गोइंग। अच्छा जी, वेयर ही वाज गोइंग। अब देखें वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसको ये जो अंदर वाला फिक्रा है इसको क्या करना है, सिंपल टेंस में सादा जुमले में कन्वर्ट करना है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, ये इसका सादा फिक्रा ये होगा। वेयर आर यू गोइंग का वेयर यू आर गोइंग, ये सादा फिक्रा हो गया। अच्छा, वेयर यू आर गोइंग मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर यू आर गोइंग। अब ये अंतर का फिक्रा ऐसा है कुछ इस तरह, ये आपने रफ में बना लेना, वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखें वेयर का वेयर वही आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है, पर्सन की तब्दीली हमने पढ़ी हुई है, यू एक सेकंड पर्सन है। यू कौन है बेटा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके साथ तब्दील होता है, मफऊल के साथ तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। अब यहाँ पे इस फिक्रे के अंदर हिज फादर क्या है बेटा, ये बाप जो है ना ये क्या है, मफऊल है। अब यहाँ पे देखें हिज फादर की जगह पे मैंने ही लगाया हुआ है। आपको पता है ही शी इट या सिंगल नेम, अगर फादर है तो सिंपल सी बात है वो एक मर्द है, एक ही है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा है बेटा, ही लिखा है। ही एंड सेकंड वन इज, अब देखें ये आर लगा हुआ है। ज़माने की जब हम तब्दीली की बात करते हैं यहाँ पे आर है, बार वाला फिक्रा फिर माजी है और अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है कामे के अंदर, तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेल हाल जारी, फेल माजी जारी में कन्वर्ट हो जाएगा। आर वाज में कन्वर्ट हो गया, ही के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता, आपको पहले भी पता है। अब देखें यहाँ पे वाज आ गया एंड गोइंग का वही गोइंग आ गया, तो ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, वो कहता है सज्जाद सेड टू हिज फादर आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले आपने यही करना है, इसको जो है ना अंदर वाला फिक्रा जो क्वेश्चन मार्क्स है, सबसे पहले आपने उसको सादा जुमले में कन्वर्ट करना है। आर यू गोइंग का क्या होगा, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग इसका सादा फिक्रा है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है ये सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सेड टू में सबसे पहली तब्दीली है आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया सबसे पहले। उसके बाद हिज फादर वैसे का वैसे आ गया। अब मैंने क्या कहा है बेटा, जो दूसरी फिक्र जो सेड टू, अच्छा जो दूसरी किस्म के सवाल या फिक्रे हैं उसमें क्या आएगा बेटा, इफ़ इस्तेमाल करते हैं हम या वेदर इस्तेमाल करते हैं। पहली टाइप के जो फिक्रे हैं जिन्हें हम डबल सवाल कहते हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ये जो है ना इफ़ और वेदर का इजाफा नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे वेयर इस्तेमाल हो रहा था, मैंने किसी किस्म का ना ही कोई इफ़ लगाया ना ही वेदर लगाया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे आर था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था ये फिक्रा, तो मैंने इसे क्या किया बेटा, यहाँ पे इफ़ लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, इफ़ लगाएंगे और उसके बाद यू आर गोइंग। यू अब कौन सा पर्सन है बेटा, यू एक सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन फिर वही बात आ जाती है, हिज फादर की जगह पे ही आ गया, सेकंड पर्सन वही आ गया। अब यू आर गोइंग, आर कौन सा टेंस है बेटा, आर जो है ना फेल हाल जारी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेल माजी जारी में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वाज गोइंग आ गया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इससे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, हुक्म या फिक्रे जिन्हें आप कहते हैं, जिसमें बेटा किसी किस्म का हुक्म दिया जाता है, वो जुमले जिनमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए। अच्छा, इनकी जो है ना पहचान ज़रूरी है बेटा, आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, जो है ना हुक्म या फिक्रे कौन से हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशन ना आए तो फिर आप इनकी तब्दीलियाँ उसमें लिख देंगे, उसकी तब्दीलियाँ उसमें लिख देंगे, फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर जो है ना आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सही टेंस आपका गलत हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो सबसे पहली तब्दीली है, वो कहता है सेड टू या से टू को फिक्रे के मानों के मुताबिक मसलन आर्डर, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह में तब्दील किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के अंदर कोई बंदा हुक्म कर रहा है कि आप जो है ना मुझे, मुलाजिम को हुक्म कर रहा है कि मुझे चाय ला के दें, इसका मतलब है वो मुलाजिम को हुक्म कर रहा है। अगर कोई बंदा सर से बात कर रहा है, कोई स्टूडेंट बात कर रहा है, तो उसका मतलब है वो सर से रिक्वेस्ट कर रहा है, सर प्लीज़ ये जो है ना काम कीजिएगा। तो इसका मतलब ये फिक्रे की मुनासबत से फिक्रे की नौयत को देखा जाता है कि वो बंदा किस बंदे से बात कर रहा है, किस लेवल के बंदे से बात कर रहा है। अगर वो अपने से छोटे से बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो आर्डर दे रहा है, आर्डर आ जाएगा वहाँ पे। अगर वो बड़े बंदे से बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर से। अगर कोई इसी तरह आप देखेंगे एग्जाम्पल से आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो आप देखें दूसरे जो बगैर फ़ाइल के लिखे हुए तमाम अफ़ाल से काबिल टू लगाया जाता है। अगर फ़िक्रे के अंदर कहीं पे अफ़ाल जो है ना फ़ाइल ना हो तो उसके अंदर बेटा, इसके अंदर अक्सर फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ़ाइल नहीं होता।
तो देखेंगे एग्जांपल के अंदर देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ाइल वहाँ पे नहीं होता तकरीबन। अच्छा, इसको जो है ना वहाँ पे टू लगाते हैं वगैरह, नफ़ी में ना हो तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू लगाते हैं। अच्छा, दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे भी बेटा दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। इस फिक्रे में भी हमने पढ़ा दैट नहीं लगता। और हमने जब पहला टेंस पढ़ा जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस से खबरिया जुमले थे, उसके अंदर बेटा क्या था, दैट का इस्तेमाल था। लेकिन यहाँ पे भी नहीं है दैट का इस्तेमाल, यहाँ पे भी आपने नहीं लगाना दैट का इस्तेमाल, दोनों के फिक्रों में। अच्छा, बाकी तब्दीलियाँ वो कहता है इसमें मामूल होंगी, बाकी तमाम की तमाम तब्दीलियाँ वैसे की वैसे होंगी। जैसे पर्सन चेंज होता है या इसी तरह टेंस की तब्दीली है, वो सारी की सारी बेटा क्या होती हैं, सेम होती हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल से आपको मजीद पता चल जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल है बेटा, वो कहता है आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब देखें आई ऑर्डर, अब देखें ऑर्डर, ये सर्वेंट को, मुलाजिम को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब फिक्रे की नोयत ये है कि वो मुलाजिम को कह रहा है, ऑर्डर कर रहा है, हुक्म दे रहा है। आई ऑर्डर माई सर्वेंट, मैंने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया टू पॉलिश माई। अब ये कि टू पहले वो कहता है बगैर फाइल के लिखे हुए तमाम अफ़ाल से कब। अब देखें पॉलिश माई शूज़, यहाँ पे किसी किस्म का कोई फाइल नहीं है, ये फिक्रा वर्ड से शुरू हो रहा है, फाइल नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या लगाएंगे बेटा, ये टू आ गया, टू पॉलिश माई शूज़। अब यहाँ पे बाकी तमाम तब्दीलियाँ सेम है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई और तब्दीली नहीं लगती, तो तमाम की तमाम तब्दीलियाँ क्या हैं बेटा, सेम है। अब माई की अगर बात करें, आप कह रहे होंगे माई जो है, देखिए बेटा माई जो है ना, इस माई मी एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ तब्दील होता है, फाइल के साथ तब्दील होता है, सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है बाहर वाले फिक्रे के। अब सब्जेक्ट भी आई है, अगर आई की मैं सेकंड फॉर्म लिखूंगा आई माई मी, वही सेम चीज़ ही आ जाएगी, तो वही सेम चीज़ ही है तकरीबन। दूसरा टेंस है बेटा ही सेड रिजवान कम हायर। अच्छा, इसमें अंदर रिजवान को क्या कर रहा है, वो रिजवान को ऑर्डर कर रहा है, हुक्म दे रहा है कि कम हायर, यहाँ पे है। अच्छा जी, ही ऑर्डर, अब यहाँ पे क्या आएगा, सेड किसकी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड टू या से टू बेटा फिक्रे के मानी के मुताबिक तब्दील होता है। यहाँ पे सर्वेंट को उसने कहा है कि पॉलिश माई शूज। अब सर्वेंट को ज़ाहिर मुलाजिम को वो एक ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है कि मेरी मेहरबानी करें कि मुझे जूते पॉलिश कर दें, वो एक ऑर्डर कर रहा है। यहाँ पे भी उसने कुछ, उसका काशन ही ऐसा है कि रिजवान कम है, रिजवान जहाँ आए, तो इसका मतलब है वो ऑर्डर कर रहा है, ही ऑर्डर रिजवान टू कम हेयर। टू इसलिए बेटा मैंने लगाया क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फाइल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहले भी मैंने कहा है जिसके अंदर फाइल ना हो, सॉरी जी बिल्कुल फाइल ना हो, सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पे फिक्रा शुरू करने से पहले वहाँ पे क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। टू कम हेयर, हेयर की जगह पे हमने कुछ मखसूस अल्फाज की तब्दीली पड़ी थी बेटा, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर दी मैंने। हेयर की जगह पे क्या आएगा, देयर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है ही सेड टू मी प्लीज डू नॉट रन फास्ट। अब यहाँ पे प्लीज का क्या मतलब है बेटा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बराए मेहरबानी मजीद जो है ना तेज ना चले, डू नॉट रन सो फास्ट, बराए मेहरबानी तेज ना चले। अब क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सेड टू किस में कन्वर्ट होगा बेटा, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट होगा। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, डू नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टू में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टू रन सो फास्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉट टू, डू नॉट जो है ना नॉट टू में कन्वर्ट हो गया, डू नॉट टू में कन्वर्ट हो गया, नॉट टू रन सो फास्ट। ये थी तकरीबन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आगे दो और भी बचते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तकरीबन 5 अक़साम हैं जुमले की, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी हम जो है ना इसकी एक्सरसाइज में बताऊँगा, वहाँ पर अगर मज़ीद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं बनेगा।